गुड मॉर्निंग क्लास। बीएससी पार्ट सेकंड की सेकंड पेपर एनिमल फिजियोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी की क्लास है। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है प्रोटीन। ठीक, कल हमने कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ा था। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, उनके टाइप्स क्या होते हैं, उनके क्लासिफिकेशन क्या होते हैं, उनका फंक्शन क्या होता है। हम उनको रिवाइज़ करते हैं। ठीक है, एक बार फिर हम प्रोटीन को की तरफ मूव ऑन करेंगे। तो फर्स्टली कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? सिंपल फॉर्म ऑफ शुगर दैट इज़ कंपाइज्ड विद द कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. That ratio is 1:1. They are classified into three parts. Get three type of carbohydrates. First monosaccharides, second oligosaccharides, third polysaccharides. Monosaccharides composed with the, या हम कह सकते हैं monosaccharides are made up of single molecules of मोनोसेकेराइड, है ना, सिंपल मॉलिक्यूल्स ऑफ सेकेराइड्स, दैट इज़ कॉल्ड मोनोसेकेराइड्स. बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ग्लूकोज, सुक्रोज, माल्टोज, है ना. द सेकेंड वन इज आर ओलिगोसेकेराइड. ओलिगोसेकेराइड्स इज मेड अप ऑफ 2 to 10 मोनोसेकेराइड्स मॉलिक्यूल. दैट रेशियोज बिकम 6 C6H12O6 ratios, है ना. If we want to find out what the ratio is oligosaccharides, what kind of saccharides is present in the list. सपोज़ करो कि हमें कोई लिस्ट दे दी गई हो और उसके अंदर हमें ये देखना हो कि कौन सा सैकेराइड है, ये कौन से वाले मोनोसैकेराइड का एग्जाम्पल है. सो हाउ वी फाइंड दैट? वी फाइंड दैट विद द फॉर्मूला ऑफ H, जैसे कि C समथिंग, O समथिंग और पूरे का होल, है ना. दैट इज़ द रेशियो, या हम कह सकते हैं दैट इज़ द एम्पेरिकल फार्मूला. फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज पॉलीसैकेराइड्स. तो पॉलीसैकेराइड्स क्या होते हैं? पॉलीसैकेराइड्स वो होते हैं जिसके अंदर 1 to 10, या हम कह सकते हैं मोर देन 10 and more than 10 to 1000 saccharides molecules are attached. When we dissolve in the water, the polysaccharides give us the monosaccharides. So polysaccharides also are very important. They are formed in complexes form. So today, we already briefly discussed about the carbohydrates. Now we start the protein. What is protein? What we understood by the proteins. So proteins, the molecules which yield amino acid upon hydrolysis, are called protein. When we talk about the definition of protein, so the first point is the definition of protein. All of the point is very important for that, but if we just talk about the introduction and the definition about the protein, so first line is very important and differentiate the definition of. So the molecules which yield amino acids upon hydrolysis are called proteins. Okay, the molecules which yield amino acids, matlab as that molecules that has an amino acids which hydrolyzed, है ना, which hydrolyzed, that's called a amino acids. थोड़ा और समझा देते. ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर एमिनो एसिड्स हाइड्रोलाइज्ड हो जाते हैं या ऐसी कंडीशंस में मिलते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? एमिनो एसिड, जो कि क्या होते हैं? सॉल्यूबल होते हैं इन वाटर. हाइड्रोलाइसिस मतलब कि जो वाटर सॉल्यूबल होते हैं वो. ठीक है. सेकंड, एमिनो एसिड्स आर नेचुरल पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड्स. तो proteins are what? Proteins are natural polymers, है ना, polymers of amino acids. Like monomers meaning a single molecule of something, है ना, single molecules. और monomers क्या होंगे? The group of monomers that we call the polymers. So proteins are what? Proteins are a natural polymers of amino acids.
The next point is the number of amino acids. The number of amino acids in a protein molecule may range from 2 to several thousand. As we discussed about that, we talk about the polymers. When we talk about the polymers, so what is polymers? The group of collection of, है ना, group and the collection of the monomers. So number of the amino acids, the number of the amino acids in a protein मॉलिक्यूल, यानी किसी प्रोटीन मॉलिक्यूल के अंदर एमिनो एसिड्स के जितने नंबर होंगे उनका जो रेंज होगा वो कितना होगा? फ्रॉम 2 टू सेवरल थाउजेंड. करेक्ट. प्रोटीन मॉलिक्यूल्स कंटेन, नेक्स्ट पॉइंट, protein molecules contain nitrogen, carbon, hydrogen and oxygen. Meaning like carbohydrates contain what? Carbohydrates contain carbon, hydrogen, oxygen, but in the protein nitrogen is also come here. ठीक है. तो in protein molecule contain nitrogen, carbon, hydrogen and oxygen. So because protein is all about the amino acids. When amino acids come, so directly nitrogen is come. Okay. When we talk about the amino acids, so nitrogen is already come. So protein molecules contain what? Nitrogen molecule, carbon molecule, hydrogen molecule and as well as oxygen. Okay. Next point, proteins are the basis for the major structural component of animal and human tissues. जो प्रोटीन्स होते हैं वो क्या होते हैं? बेसिकली क्या होते हैं? मेजर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होते हैं, यानी कि एक तरीके से स्ट्रक्चरल कॉम्बिनेशन बनाते हैं, कंपोनेंट्स की तरह होते हैं. स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स आप ये समझो कि इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो वेल सेटल्ड होता है. किसके अंदर? एनिमल टिश्यूज़ के अंदर भी और ह्यूमन टिश्यूज़ के अंदर भी. तो प्रोटीन्स आर बेसिक्स फॉर द मेजर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ द एनिमल एंड ह्यूमन टिश्यूज़. यानी कि ये बहुत एक ज़रूरी, आपके जो प्रोटीन्स होते हैं वो एनिमल और ह्यूमन टिश्यूज़ के लिए बहुत ही ज़रूरी कंपोनेंट होते हैं. नेक्स्ट पॉइंट, they act as biological catalysts या enzyme from structural part of the organism, participate in different cell reaction, act as molecule of immunity and also provide fuel. See, we are simply said that proteins are a kind of a catalyst. That means a enzyme, a biological enzyme which help in the structural part of a cell reaction, a different kind of cell reaction. When we need a natural kind of enzymes, so in some kind of reactions, biological catalysis, proteins act like a biological catalyst. ठीक है. In some reaction, proteins are reacted as a biological enzymes. So that part of enzyme is called a structural part of organism that participate in a reaction, cell reaction, और वो and as well as they act as a molecule of immunity. तो उसी जगह पे क्या होगा? समझो कि जो प्रोटीन हो रहे वो क्या कर रहे हैं कि एंजाइम्स की तरह काम भी कर रहे हैं और साथ ही साथ में क्या कर रहे हैं? वो सेल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और साथ ही साथ में एज अ मॉलिक्यूल ऑफ इम्यूनिटी, यानी कि एक एनर्जी देने के लिए, इम्यूनिटी देने के लिए एक मॉलिक्यूल की तरह भी काम कर रहे हैं, जो कि क्या कर रहा है? प्रोवाइडेड फ्यूल. ठीक है. प्रोटीन के ये 5 to 6 पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. 5 से 6 पॉइंट्स में हमको समझ में आ जाता है कि प्रोटीन क्या होते हैं, उसका डेफिनेशन क्या है, उसका ओवरऑल एक्सप्लेनेशन क्या है.
अब हम बात कर लेते हैं प्रोटीन्स के क्लासिफिकेशन की, या टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स बोल सकते हो, या क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन बोल सकते हो। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। Classification of protein. So protein are divided into three parts, that is simple proteins, conjugated proteins और derivative proteins, ठीक है। Classifications of protein, that is first is simple protein, second conjugated protein, and third is derived protein। जब हम सिंपल प्रोटीन्स की बात करते हैं तो इजीली अंडरस्टूड होता है कि सिंपल प्रोटीन क्या होंगे, सिंपल फॉर्म ऑफ सिंपल अटैचमेंट होगा उनका मॉलिक्यूल सा, वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में नहीं होंगे। कॉन्जुगेटेड थोड़े से कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होंगे और डेरिवेटिव उनसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होंगे, है ना। जैसे हम कार्बोहाइड्रेट्स में देख लेते हैं सिंपल, ओलिगो और पॉली, है ना, वैसे ये सिंपल होंगे। तो कुछ समझने के लिए हम देख लेते हैं कि सिंपल क्या होंगे। दोज protein which give one amino acid only upon hydrolysis। Conjugated those which give an amino acid and non-protein group upon hydrolysis। फिर लास्ट हम डेरिवेटिव्स के लिए लिख लेते हैं, दोज विच आर derived from simple and conjugated proteins। देखो, जब हम प्रोटीन का क्लासिफिकेशन करते हैं तो सिंपल प्रोटीन, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन और डिराइव्ड प्रोटीन बोल सकते हैं हम इनको। तीन क्लासिफिकेशंस यानी तीन क्लास होती है प्रोटीन्स की। फर्स्ट क्लास में हम सिंपल प्रोटीन को देखते हैं, तो वो प्रोटीन्स जो कि क्या होते हैं, जो कि हाइड्रोलाइसिस के टाइम पे 1 एमिनो एसिड्स को देते हैं, ठीक है। और कॉन्जुगेटेड में क्या होता है, ऐसे प्रोटीन्स जो हाइड्रोलाइसिस के टाइम पे क्या करते हैं, 1 से ज़्यादा n एमिनो एसिड यानी मोर देन 1 एमिनो एसिड्स ग्रुप या
नॉन प्रोटीन ग्रुप जो होते हैं वो हमें मिलते हैं, और जो डेरिवेटिव या डिराइव्ड प्रोटीन्स होते हैं वो क्या करते हैं, इन दोनों से मिलकर के बना हुआ होता है। यानी कि सिंपल और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स क्या करते हैं, आपस में मिलकर के डेराइव्ड प्रोटीन्स बनाते हैं। ठीक है, अब जब बात करते हैं हम सिंपल की, तो थोड़ा सिंपल डिटेल में पढ़ते हैं कि सिंपल प्रोटीन्स क्या होते हैं। हमने थोड़ा सा उसकी डेफिनेशन से समझा है, तो कुछ हम एग्जाम्पल देखते हैं सिंपल प्रोटीन्स के, थोड़ा अच्छे से डिटेलिंग में पढ़ते हैं। सिंपल प्रोटीन्स, एल्बुमिन्स। ठीक है, ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स is soluble in water and dilute salt solution. Precipitated by saturation with solution। ये कॉन्जुगेटेड होते हैं बाय द हीट, कॉन्जुगेटेड बाय द हीट। फाउंड इन प्लांट एंड टिश्यू। इनका एग्जाम्पल भी लिख लेते हैं। ब्लड, मिल्क, एग वाइट, देखो जब हम बात करते हैं सिंपल प्रोटीन्स में, तो सिंपल प्रोटीन्स में भी बहुत सारे आते हैं। तो हम अभी बात करते हैं एल्बुमिन्स की। तो एल्बुमिन्स में क्या होता है कि ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स इज़ सॉल्यूबल इन वाटर एंड डाइल्यूटेड सॉल्ट सोल्यूशन। यानी कि बहुत सारे प्रोटीन्स जो होते हैं वो वाटर के अंदर सॉल्यूबल होते हैं। क्या होते हैं, वाटर सॉल्यूबल होते हैं, और किस में डाइल्यूट हो जाते हैं, वो सॉल्ट सोल्यूशन के साथ डाइल्यूट होना मतलब कि उनका कॉन्सेंट्रेशन लेवल क्या होता है, डाउन हो जाता है। तो क्या होता है कि जितने भी ग्लोब्यूलर मतलब जितने भी ओवरऑल प्रोटीन प्रेजेंट हैं वो सारे क्या है, वाटर सॉल्यूबल है एंड डाइल्यूटेड किस में है, सॉल्ट सोल्यूशन में, जो एल्बुमिन्स में आते हैं वो। फिर प्रेसिपिटेटेड बाय सैचुरेशन विथ NH4 सोल्यूशन, है ना। जो ये सैचुरेशन वाले यानी कि एमिनो क्या बोलते हैं इसको,
सल्फ्यूरिक एसिड, नहीं, कौन सा सोल्यूशन है ये, हाइड्रोक्साइड, अमोनियम सल्फाइड। अमोनियम सल्फेट है ना। तो प्रेसिपिटेट बाय द सैचुरेशन विद अमोनियम सल्फेट सॉल्यूशन, तो ये क्या करते हैं, प्रेसिपिटेट देते हैं, सैचुरेटेड होते हैं किसके साथ में, अमोनियम सल्फेट सॉल्यूशन के साथ में, कॉन्जुगेटेड बाय द हीट, ये तो क्या करते हैं कि ये कॉन्जुगेटेड होने लगते हैं, क्योंकि अभी ये सिंपल फॉर्म में है, लेकिन अगर इन्हें हीट दी जाए तो हीट देने के साथ साथ में क्या हो जाए, कॉन्जुगेटेड, मतलब कि इस और ज़्यादा में भी हार्ड बॉन्ड आपस में अटैच्ड बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, तो ये कॉन्जुगेटेड बाय द हीट, फाउंड इन प्लांट्स एंड एनिमल टिश्यूज़। सो एल्बुमिन्स जो प्रोटीन्स होते हैं वो जनरली किस में फाउंड आउट होते हैं, हमें या तो प्लांट्स में या एनिमल टिश्यूज़ में हमें ये फाउंड आउट होते हैं। एग्जाम्पल इनका बहुत अच्छे दिए हुए हैं, ब्लड, मिल्क, एग वाइट, लेंटिल्स, किडनी बीन्स और व्हीट। सबसे ज़्यादा प्रोटीन्स हमें देखने को मिलता है एग वाइट्स में, ब्लड में, मिल्क में या लेंटिल्स में, किडनी बीन्स में, है ना। तो इनके अंदर क्या होता है, हाई रेटेड हमें क्या मिलता है, प्रोटीन्स मिलते हैं। हमारा सिंपल प्रोटीन्स हो गया है, सिंपल प्रोटीन्स में ग्लोबुलिन्स होते हैं, उसके बाद में ग्लूटाबिन्स होते हैं, हम वो भी देखेंगे थोड़ा सा ब्रीफली, उनके बारे में भी पढ़ेंगे। तो आज के लिए हमारे इसमें एल्बुमिन्स तक ही, नेक्स्ट वाले में हम पढ़ेंगे ग्लूटाबिन्स के बारे में।